नमस्ते सबको। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। याद रखिए 11 का जो टेस्ट लेते हैं हम वो लेते हैं हम वेडनेसडे को, और 12 का जो टेस्ट होगा वो हर बार सैटरडे को होगा। उसमें जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस चीज़ का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरिटी में आप बने रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर है, सुंदर सा फ्लावर दिखाई दे रहा है ना आपको। तो आइए देखिए इसमें क्या है, एंथर भी है, और एंथर मतलब स्टेमन भी है, और देखिए पिस्टल्स भी हैं, यहाँ पे कार्पेल्स भी हैं। तो मुझे बताइए ये ओवरी कैसी है, यहाँ पे गाइनोशियम कैसा है, मल्टी कार्पेलरी। सिनकार्पस है, एपोकार्पस है, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से फ्री हैं। तो ये कैसा है, एपोकार्पस है। तो चलिए आज का जो आपका टेस्ट है वो है 60 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की। आपको जितना भी आपका स्कोर आता है और जितने भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनका एक एक मार्क्स डिडक्ट करना है। तो अपना पेन और नोटबुक लेके रेडी रहिए। 45 सेकेंड आप एक क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो अपने आंसर्स के साथ आप ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहेंगे वो भी आपकी इच्छा है, आप खुद को धोखा देंगे। तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइए, क्योंकि आप बताते नहीं हैं। बताएंगे तो मुझे एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। फर्स्ट क्वेश्चन, Cleistogamous flowers are wind pollinated, water pollinated, self pollinated, or insect pollinated. Next question, ovaries of paperwort and Michelia are multicarpellary, but paperwort is apocarpus and Michelia is syncarpus. Paperwort is syncarpus and Michelia is apocarpus. Both are syncarpus. Both are apocarpus. Next question. The ploidy of the cells of microspore tetrad is haploid, diploid, triploid, or tetraploid. Next question. A bilobed dithecous anther has 200 microspore mother cells per microsporangium. Total number of male gamete this anther can produce are 400, 3200, 800, or 1600. Moving to the next question. Plant which came to India as a contaminant and cause of pollen allergy is paperwort, Parthenium, Viola, or Striga. Next question. Viola is Cleistogamous, Chasmogamous, both A and B, or none of these. Next question. Female gametophyte is also known as ovule, nucellus, egg apparatus,
or embryo sac? Next question. Larger cell of pollen grain with irregular shaped nucleus is generative cell, vegetative cell, apical cell, or basal cell? Next question. Ovule is attached to placenta by pedicel, hilum, funicle, or integument? Next question. The ovule of angiosperm is equivalent to megasporangium, megaspore mother cell, megaspore, or megasporophyll? Next question. Which one of the following required pollinator but is genetically similar to autogamy? Geitonogamy, xenogamy, apogamy, or cleistogamy? Next question. Functional megaspore in ovule develops into endosperm, ovule, embryo, or embryo sac? Next question. A dioecious flowering plants prevent both autogamy and xenogamy, cleistogamy and geitonogamy, geitonogamy and autogamy, cleistogamy and autogamy? Next question. In majority of angiosperms, egg has a filiform apparatus. There are numerous antipodal cells. Reduction division occurs in the megaspore mother cells, or a small central cell is present in the embryo sac. And now moving to the last question. How many divisions are required to produce 20 megaspores? How many divisions are required to produce 20 megaspores? 5, 10, 20, or 4? ये है आपका आंसर की। अब आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे जो है वो गलत है, आपका आंसर्स हुए हैं और कितने आपको मार्क्स आए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं आंसर्स का। ओके, चलिए। How many divisions are required to produce 20 megaspores?
मैंने आपको कहा था एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उससे बनता है पहले लीनियर टेट्राड बनता है मेगास्पोर का। याद रखिएगा, जो मेगास्पोर का टेट्राड सबसे कॉमन होता है वो लीनियर टेट्राड होता है, और माइक्रोस्पोर का जो है वो टेट्राहेड्रल टेट्राड सबसे कॉमन होता है। तो इनमें से जो तीन जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, तीन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, तो एक ही फंक्शनल बचेगा। तो मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक मेगास्पोर बना पाती है। तो 20 मेगास्पोर बनने के लिए कितने डिवीजन्स चाहिए होंगे, 20 ही डिवीजन्स चाहिए होंगे। समझ गए आप? नहीं समझ आएगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा। देखिए, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज़ अ फिलीफॉर्म ऑपरेटस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है वो सिनर्जिड्स में होता है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नो देयर आर ओनली 3 एंटीपोडल सेल्स। रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल्स, ये सही है क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है। स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल, वो लार्ज सेंट्रल सेल होता है। तो चलिए, आपको समझ आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिनोगैमी। ऑटोगैमी तो वो प्रिवेंट करेगा, लेकिन जिनोगैमी तो उसमें होगी, तो पहला गलत। क्लिस्टोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है, ओपन और क्लोज का उसका है ही नहीं। क्लिस्टोगैमी तो वो कभी होगी ही नहीं उसमें, तो इसमें हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइटोनोगैमी तो भी नहीं होगी उसमें, ठीक है। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लिस्टोगैमी उसमें अगर मोनिशियस फ्लावर है, पहली बात है वो क्लिस्टोगेमस नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पॉलिनेट करना है। अगर वो क्लिस्टोगेमस होगा और उसमें सिर्फ क्या है, मोनिशियस नहीं, सॉरी डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इट के नॉट बी क्लिस्टोगेमस। वो बंद रहेगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, उसकी पॉलिनेशन कैसे होगी। तो इस तरह से ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी देखिए, गाइटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी, हाँ बिल्कुल। अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट मतलब उसकी एक बॉडी पे आइदर क्या है, मेल है, और क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो अब इसमें गाइटोनोगैमी भी नहीं होगी। देखिए, गाइटोनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट का, एक ही प्लांट होता है ना, उसमें एक ही प्लांट पे क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक। तो उसमें गाइटोनोगैमी हो जाती है। सेम प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, ठीक, गाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी में एक ही प्लांट पे क्या होंगे, एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल होंगे, ठीक। तो ना वो इसमें ऑटोगैमी हो सकती है, नहीं हो सकती, गाइटोनोगैमी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लिस्टोगैमी एंड ऑटोगैमी, अगेन हम बोलेंगे कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये क्लिस्टोगेमस नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लोज रहेगा, तो इसमें क्या नहीं होगी, पॉलिनेशन कभी होगी ही नहीं और स्पीसीज आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या आता है, गाइटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी। फंक्शनल मेगास्पोर इन ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनता है, एंडोस्पर्म? नहीं, एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ओव्यूल नहीं। क्योंकि मेगास्पोर जो है वो ओव्यूल में ही बनेगा, तो ना कि मतलब जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही आपको फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिलेगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर ओव्यूल नहीं बन सकता। एम्ब्रियो नहीं, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक बनता है, जिसमें जो क्या एक्ट करता है एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। Which one of the following require pollinator but is genetically similar to autogamy? बिना किसी डाउट के हम कर देंगे गाइटोनोगैमी, क्योंकि गाइटोनोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है जेनेटिकली। एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है, तो हमें वो इकोलॉजिकली और फंक्शनली देखने में कैसी लगती है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उसके लिए एक पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि एक ही प्लांट है तो जेनेटिकली वो कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जिनोगैमी नहीं होगा, क्लिस्टोगैमी भी नहीं होगा, एपोगैमी भी नहीं, और क्लिस्टोगैमी भी नहीं होगा, क्योंकि क्लिस्टोगैमी तो पूरा का पूरा क्या होगा, उसमें ना पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है, और जेनेटिकली तो खैर वो सिमिलर है ही। क्लिस्टोगैमी इज अ पार्ट ऑफ ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी ही ट्रू ऑटोगैमी शो करता है। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू, हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने जब ओव्यूल पढ़ना था तो हमने लिखा था मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम।
मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल बनता है, न्यूसेलस से कोई सेल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है उसका न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, फिर वो रिडक्शनल डिवीजन करता है तो क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है। तो मेगास्पोरोफिल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, ये आपको सीधे से पता है, ठीक है। लार्जर सेल ऑफ pollen grain with irregular shape nucleus is generative cell, नो, स्मॉल होती है वेजिटेटिव सेल, करेक्ट। तो बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी रॉन्ग है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बहुत बार बताया है फिर भी आपने गलत किया होगा तो बहुत गलत बात है, एम्ब्रियो सैक। वियोला इज क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस, बोथ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें वियोला भी एक एग्जाम्पल था। इनमें क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों ही फ्लावर्स होते हैं, मतलब ओपन फ्लावर एंड क्लोज्ड फ्लावर। क्लिस्टोगैमस क्या है, क्लोज्ड फ्लावर। चेस्मोगैमस किसको बोलते हैं, जो ओपन फ्लावर होता है। प्लांट विच केम टू इंडिया एज कॉन्टेमिनेट एंड काउज ऑफ pollen एलर्जी इज, पेपेवर नहीं, हमने एक ही एग्जाम्पल पढ़ा था, पार्थेनियम। A bilobe Dithecus anther has 200 microspore mother cells per microsporangium। कितने हैं, 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं हर एक। टेट्रास्पोरेंशिएट होता है ना, तो 4 स्पोरेंजिया हैं और हर एक में कितने हैं पॉलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 200 हैं। तो एक कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने बनेंगे, 800 बनेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 4 है। तो 800 मतलब एक में 800 बन रहे हैं, तो 4 में टोटल कितने बन जाएंगे, 3200। समझ गए। द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज हैप्लॉइड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होगा, हर एक माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ओवरीज ऑफ पेपेवर एंड मिशीलिया आर मल्टीकार्पेलरी, बट पेपेवर जो था आपने सिनकार्पस पढ़ा था और मिशीलिया जो है वो एपोकार्पस पढ़ा था। आपको डायग्राम याद होना चाहिए। क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर्स आर, वो ट्रू ऑटोगैमी शो करते हैं, मतलब वो पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इनको किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। होप आपकी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, कंटिन्यूटी में बने रहिए साथ में, क्योंकि ऐसे ही हम सिलेबस जो है वो कवर करते रहेंगे और थोड़े थोड़े MCQs भी साथ में करते रहेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।